So, hi everyone. Thank you so much for coming in, Chirag. Just to give a slight bit of a heads up as to what you do, you are a health and fitness coach, and you run your company called PFC Club. And if you could just give me a slight bit of an insight as to what the PFC Club is, and into the background of your whole fitness and regime, your nutrition Yeah, background. thanks, Yash. Thanks, Yash. So yeah, I started as a coach around 4 years ago. Okay. I used to coach people, and then because of the social media reach and all, demand grew over the period of time. People loved my coaching, so I decided to form a company and train other coaches just the way I used to coach. Right. So hence I launched this company known as PFC Club. Now it is known as PFC because it's a short form of Project Fitness Company. Okay. Okay. So yeah, we were thinking about the name and all. We were confused what to name. So yeah, we just named it Project Fitness Company. Right. Also, it somewhat resonates with protein, fats, and carbs. Okay. Acha, makes sense. Yeah. Yeah. So now it is known as PFC Club. Great. So, you said you started this club about 4 years back, and prior to that, were you into fitness itself, or were you in the corporate? So I started this club around 18 months ago. Okay. Before that, I was working as a freelancer. I was working as a lone stand, like a lone man team. अच्छा ओके 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 सो Yeah. यार एक चीज बताओ यार बिकॉज आई हैव बीन वेरी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट दिस चिराग ये व्हाट डज इट एंटेल सो व्हेन वी टॉक अबाउट health fitness coach uh, so a lot of people when you have a word with them with regards to fitness and all of that they say I go to the gym I do this and so are you into that specific niche also, or is it only the nutrition part, or only the health tips and all of that? All of that, are you into that specifically, or how do you demarcate yourself? So our club has all the options. Our coaches train at the gym as well. We provide online classes as well. We provide nutrition. Along with that, we provide mental health wellness as well for the Right. clients. And we have doctors in our team. It's a complete single window solution sort of thing, where you come for the fitness, but you go out as a complete healthy person. Not just the nutrition, not just the exercise, but a club of everything. So it's an amalgamation of both of sorts per se, like. Yeah, yeah. Okay. So, but when it comes to these, get people who are reaching out to you, कि मतलब social media पे reach out कर रहे हैं या otherwise you have a specific domain where they can directly reach out to you. You have a specific office in a specific location where they can directly So directly we come and prefer care about. Yeah. the online mode of communication the most. Right. Offline, we have a presence in some cities like Delhi, Bangalore, Pune, Bombay, Right. but there is no particular center as such because it limits. It limits you, and I cannot be everywhere. But Right. on the online space, I can be everywhere, right? And we have made communities on Twitter, on Telegram, on WhatsApp, on Facebook. Everywhere our communities are, where people can join the community and ask anything for free there. They can ask anything about nutrition, Hmm. about any workout form, about any mental health tip or anything. Our coaches, our doctors are always present in the community to answer it. तो मेंटल हेल्थ पे लाइक आपके पास डू यू आल्सो हैव लाइक साइकोलॉजिस्ट आल्सो विद यू इन योर टीम Yeah, yeah. ओके 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 सो they're like on they're like your employees or like they work on as freelancers with you, so how does it work? So they work as a on vendor basis, obviously, as Right. on when needed. But right now we are transforming into a complete permanent thing because what we have seen in the past, people join for fitness, but they don't realize that they are going through some mental disorder. Right. I'll give you some example. Someone joined recently who was going through a binge eating disorder. Like Okay. whenever he used to see the food, he was like, नहीं अब control नहीं हो रहा है. Okay. 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 But he was not aware of it. Right. Then
coach came to know that he's going through something. We suggested to consult with a doctor, Right, and then he was diagnosed that he was going through some binge eating disorder. There right, were some therapy rounds and all. Now he's doing well. So right, now we are screening each and every client of us. right, Like, what if you are going through something? You don't right, know. Maybe you are not aware of it. right. So then what happens? So like, do you give a specific diet also? तो कैसा होता है मतलब कि आप and then you keep a track also उसके बाद कि like if Yes, you yes, yes. So this is where our coaching is important because we keep a constant track on the client. Like suppose हमने आपको कुछ डाइट दिया तो हाँ then we will check with you every week, almost every day. okay, Are you eating that the same thing? Are you right, doing your exercise? Are you completing your steps? right, And like, so what happens in the client mindset? They think कि someone is looking for me all the time. right, Someone is waiting for my update. So they right, automatically gets back on the track. right. Before cheating on the meal, they will feel like कि नहीं यार वो कोच को पसंद नहीं ये आएगा. तो मेरे को अपने लिए भी पूछना है यार चिराग हाउ डू यू मतलब इफ यू हैव एन अर्ज एंड ऑल हाउ डू यू कंट्रोल बिकॉज़ आई यार मैं तो अपना आई कैन कम फ्रॉम माय ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई कैन से दैट आई एम नॉट वन ऑफ द फिटेस्ट पीपल आई एम क्वाइट ओके पेट वेट तो हाँ निकला हुआ है आई हैव बीन ट्राइंग टू गो आउट फॉर माय रन्स एंड ऑल ऑफ दैट बट आई हैव आल्सो बीन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट हफ्ता 10 दिन चलता है अबाउट a week 10 days I try to push myself, follow a strict diet and all of that, go for my runs, but all of a sudden, matlab, I'm back to square one. So what's Yeah, the scene like? so How do you see, regiment your life? I'll give you simple example. In our school time, in our childhood, there were two ways where teacher used to keep us on track. One is the final exam, which we cannot put this into fitness and health category, right? Like there won't be any final exam until unless you are taking part into some competition or something. Uh, So for general population, second option comes where teacher used to ask to do homework, and you were like, "यार, कल कोई check करेगा, तो I have to complete my homework." That's right, about it. right, That's how our coaching works. right, And once you enroll with us or once you enroll with any coach, you have like कि यार वो check करेगा तो I should not eat outside or should not give in to my cravings. uh, So that's how you develop the mindset कि I have to control myself. And by controlling again, you get in the habit of it. hmm. But एक बार tell me something ये बहुत ज़्यादा misconception होता है जो like I've also gone through it and I'm pretty sure shitloads of other people also do the same thing that they go to the gym, they've given their half yearly subscription money, yearly subscription money, and they're like in and it becomes psychological. They try to reason with themselves and say that now that I have given money I make sure that I'll go, but वो होता ही नहीं है, it never happens. You'll probably go for about a couple of weeks, एक महीना चले पर बहुत नहीं आता है. तो वो वाला mindset भी है relevant लोगों के पास, like when they come to you that uh, paying for the services and all of that and they discontinue ऐसा होता है, then you have to push Yeah, them. yeah, yeah. It used to happen a lot around 2-3 years ago when I used to coach alone. So Okay. what happened? People used to pay like 50,000, 60,000, and they used to ghost me from the very next day. कि नहीं हो हाँ रहा हमसे, आप पैसे रख लो, हमें हाँ पैसे वापस नहीं चाहिए. हाँ. And I was like, नहीं, मतलब this is not good at me. This is I don't feel ethical about it कि आपके पैसे भी रख लिए मैंने and you're not doing it, Right, right, following it or anything like that. right, So then this was the reason I expanded into a team. So now what we do, if someone paying us money, coach तो आपको डेली कॉल करेगा ही कि आप क्यों नहीं कर रहे. right. सो फॉर एग्जाम्पल अगर जिम से आपको फोन आने लग जाए एवरी डे कि आज आप जिम क्यों नहीं आए, तो हाँ, यू विल फील लाइक कि नहीं यार इसको पैसे भी दिया, अब ये मेरे पीछे भी पड़ा है. correct, You will feel like कि नहीं जाना चाहिए मुझे, right, right? And so that's how we do it. We call from the company side as well. We operations team also call the client कि are you following it or not, or are you on the track or not. कोच के साथ कोई दिक्कत है क्या, कोच भी right, फोन करता रहता है, कोच बोलता है डेली स्टेप काउंट भेजो, डेली फूड right, पिक्चर्स भेजो. right. अब and but at the end of the day it's your money and it's your choice. Like नहीं नहीं, we that is can right. मतलब हाँ, we cannot come at your place and make you do things. Right, right. और ये भी शायद से ये भी होता है ना कि मतलब एक if you have to do something it has to come from within, nobody can force you to do it, right? मतलब Yeah, आप yeah, yeah. probably just push me कि यार एक दो बार कर दिया, but एक
at the end of the day, it's his life. He'll be in a better position to take a call as to what is correct for him and what is not correct for him. But there is that stuck up mindset also कि हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी नहीं होता है. So उसमें क्या होता है, तो that struggle. So like when people have that kind of a struggle, then what's your go-to motivation for them so that they stick to that fitness and that nutrition plan that you planned for? सो सी ऐसे हम किसी को मोटिवेट एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, राइट? वी आई कैन टेल यू फ्यू मोटिवेशनल कोट्स, यू विल फील मोटिवेटेड, बट वो मोटिवेशन वोंट रिमेन एवरी डे. Right. एक दो दिन रहेगा, एक दो दिन बहुत पीक पे रहेगा, आपको ऐसा लगेगा आज तो बस सारा वर्कआउट आज ही कर लेता हूँ, बट नेक्स्ट डे से फिर अगेन यू विल फील लाइक कि आज कौन जाए. तो वी देन call the client, we get to know कि what is the problem, why do you want to pursue the fitness, what is the reason behind it. कुछ लोगों का रीजन होता है, आई वांट टू गेट फिट फॉर माय किड्स सो दैट आई कैन प्ले विद देम. सीनियर सिटीजन क्राउड का रीजन होता है सो दैट आई कैन वॉक एंड एंजॉय माय ओल्ड एज प्रॉपर्ली विदाउट एनी पेन्स. न्यू मदर्स का होता है कि आई वांट टू गेट बैक इनटू शेप, आई एम नॉट लाइकिंग द फैट डिपोजिशन ऑन माय बॉडी. यंग किड्स का, स्टूडेंट्स का, कॉलेज किड्स का ये रहता है कि दे वांट टू look good because they want to impress others. So we strike that motivation part of it कि why do we want to do it. और फिर भी मोटिवेशन नहीं हो रहा, डलनेस हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो देन तो देयर आर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हु टेक्स केयर ऑफ इट. राइट. राइट. तो उसमें जैसे ये लाइक यू सेड दैट मोटिवेशन नहीं होता है, जैसे रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं एंड मतलब तो आपको लाइक व्हाट आर द कॉमन रोड ब्लॉक्स डू यू थिंक दैट you come across when people say that यार आज मन नहीं कर रहा है या मेरे से हो नहीं रहा है? what are the common roadblocks? या कॉमन रोड ब्लॉक्स तो ऐसे ही है कि आप फैमिली गेट टुगेदर में गए, नाउ योर मॉम इज फोर्सिंग यू टू ईट समथिंग, तो यू ईट दैट डे, बट नेक्स्ट डे से ऐसा लगता है कि यार खा ही लिया है तो ये आज भी खा लेते, क्या फर्क पड़ रहा है 2 दिन में. एंड सेम विद द फ्रेंड्स आउटिंग, वीकेंड पे फ्रेंड्स ने बुला लिया, दे आर सर्विंग यू अल्कोहल, यू आर ईटिंग आउटसाइड, तो देन यू फील लाइक कि चलो दोस्ती तो है, एक हफ्ते बाद मिले हम, वापस मिले, कब मिलेंगे, लेट्स ड्रिंक इट आउट. So yeah, these are the two common factor which we get to know the most from the clients कि आज पार्टी करने चले गए थे, आज ये चलने. एंड अदर तो साल में एक दो बार ऐसा रहता है, जैसे अभी वेकेशन पीरियड इज स्टार्टिंग नाउ, तो people are like कि we are going on vacation now. On vacation तो we are not following any diet. So that way तो we also don't force them कि obviously even if I am going on vacation I won't be following the diet, right? Right. But here we teach them mindful eating. Like if you're going on a vacation, you want to try the new cuisine of that place, try and limit, maybe taste it. Don't hog it to the limit कि फिर पता चल रहा है कि आपको bloating हो रही है and आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कितना खा लिया. Same goes with when you're going outing with the friends. Same goes with eating your mom's food and eating homemade food. Just eat in limit. Enjoy every food, but eat in limit. But make sure you get back on the track very next day. Right. Right. तो इसमें लाइक ये मैं अपने लिए भी आई जस्ट वांटेड टू चेक, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं चिराग, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो एक जैसे आई टोल्ड यू अभी कि ट्राई करते हैं एक बहुत ही रेजिमेंटेड लाइफ लीड करने के लिए हम लोग, एंड वी मेक अ प्लान, वी फॉलो इट फॉर अबाउट अ वीक, 10 days 15 days वट एवर. वो हो नहीं पाता है, रोड ब्लॉक आ जाते हैं, लाइक यू मेंशन अभी कि मतलब खाना कहीं बाहर चले गया वट एवर. तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब हम लोग अपने आप से भी एक वो मेंटल टफनेस जो होती है वो अंदर से जो आती है, वो कभी कभार नहीं आ पाती है, एंड यू गो अस्ट्रे, वो हो नहीं पाता है. तो देन मेरे साथ भी काफी बार ऐसे हुआ है दैट आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें व्हाट आर द मेन ट्रिक्स टू एक्चुअली मेक श्योर दैट कि अगर मैंने आज बना लिया है, लाइक सपोज मैंने इनफैक्ट आज मेरे को अभी आई गो आउट फॉर माई रन इन द इवनिंग, राइट, और सुबह आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, राइट, तो ज्यादातर लोग होते नहीं है. एंड अभी ये शाम को ये करना था, एंड आई वाज लाइक कि मैं अभी कर भी रहा था, कुछ काम भी अपना कर रहा था अभी, ये और ये भी करना था अभी. सो आई वाज लाइक कि यार ये करना है, पॉड भी रिकॉर्ड करना है यार, मैं भागने नहीं आऊंगा, मैं कल से. हाउ डू यू मेक श्योर कि मतलब कि अगर फिक्स करा है मैंने, आई नो व्हाट आई नीड टू डू, मैंने प्लान कर लिया है कि मेरे को क्या करना है, सो हाउ डू आई एंश्योर दैट आई डू इट लाइक एवरी डे एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल?
या सो सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यू हैव मेड इट एवरी डे. अभी नाउ एवरी डे योर रूटीन कैनॉट बी सेम, राइट? कुछ ना कुछ होगा, कभी सोशल लाइफ होगी, कभी जैसे आज पॉडकास्ट का शेड्यूल हो गया, समथिंग विल कम अप हेयर एंड देयर. सो मेक श्योर यू ऑलवेज मेक आउट योर रूटीन per week wise, not even month, not even day, per week wise. So that's how I plan. I have to work out four days a week, and I have to go for a cardio 3 days a week. That is how my plan look like. Right. Now, of these 4 days can be any 4 days in the week. It can be like Monday to Thursday, or Monday, Tuesday, then I take a break on Wednesday, then Thursday, Friday, Saturday, Sunday again I take a break. So that's how you should be planning this. So not This in way, what? session, मतलब बीच में I should give it a break. Yeah, if you can give it a break, so क्या होगा कि whenever you have Like suppose something चिराग coming up. I haven't joined a gym. मैंने पहले कर रखा Mhm. था. I used to go, फिर मैंने वो छूट गया, जो भी कह लो यार. मतलब I'm also too lazy. It's my fault also कि वो हो नहीं पाता because of work commitments and Yeah. all of that. But the fact of the matter is कि अगर मैंने as simple a thing like going out for a run, अगर वो भी आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, then I think it's an issue. Then we need to talk about it. नहीं नहीं, रेगुलर नहीं, मेक इट अ 4 डे. 4 डे भी आप कर लोगे ना. या एज पर द एविडेंस ऑल्सो 4 days ऑफ एक्सरसाइज पर वीक इज मोर देन इनफ. अच्छा. आप 4 days भी कर लोगे तो यू वोंट फील गिल्ट अबाउट इट. जब भी आप मिस करोगे ना, अभी मिस होने के बाद इतना गिल्ट होता है कि हम उस गिल्ट में हमें अभी ऐसा हो रहा है, लगने बैठा लगता है हूँ, कि गिल्ट हो रहा है. या यू फील लाइक कि अब इस गिल्ट में कल भी मन नहीं करेगा जाने का. राइट, राइट. तो अभी अगर ये 4 days होता तो यू वुड फील लाइक यार मेरे को तो 4 दिन ही जाना है, आज का दिन गया कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आज मैंने वर्कआउट नहीं करा क्योंकि मुझे आई हैड सम वर्क इन द मॉर्निंग. राइट, आई वाज लाइक ठीक है, मुझे 4 दिन करना है, अभी मेरे पास वीक में 4 दिन बाकी है, मैं आराम से मैनेज कर लूंगा. राइट. सो दैट्स हाउ यू शुड बी प्लानिंग योर कैलेंडर. वो ऑल्सो वो भी है. और दूसरा, आप जब जिम जाने लगते हो, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी, तो वो एक तरीके का एडिक्शन बनता जाता है आपके साथ. आपको लगने लगता है कि यार अब मैं इतना अच्छा दिखने लग गया हूँ, मेरे कपड़े इतने अच्छे फिट आने लग गए, तो अब आई कैनॉट लूज दिस बैक. राइट, देन यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग दैट. फिर आपको लगेगा नहीं यार ये दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव टू मेंटेन दिस. अब राइट. आप अच्छे दिखने लग रहे हो, अगर आपकी एब्स आ गई है, आपका बॉडी बहुत चिजल दिख रहा है, तो दूसरे लोग भी तारीफ करेंगे. यार तो एंड लाइक if I just do what you say right now and go for my 4 days run in a week, will that suffice? मतलब 2-3 महीने में. या 2-3 महीने नहीं, 2 हफ्ते कह रहा हूँ मैं. 2 हफ्ते में आपका आराम से अच्छा, 2 किलो दो नीचे हफ्ते में. जाएगा. अच्छा. या 2 हफ्ते में 2 किलो तो पक्का नीचे है. अच्छा. और वो 2 किलो जैसे कम हुआ ना, आप अंदर से मोटिवेटेड अपने आप ही हो जाओगे. करेक्ट, वो ऑब्वियसली हाँ, मोटिवेशन तो आता है. करेक्ट, करेक्ट, या करेक्ट, करेक्ट. तो coming back, Chirag, थोड़ा सा if you could just give me a slight bit of an insight as to what are some of the fitness trends and trends in the fitness and the nutrition industry that you think are important for people or to be a little wary of, because आजकल क्या हो गया, there are a lot of scams भी चल रहा है, people are not too aware, so they are not too clued on about fitness and all of that. So क्या what should people uh, uh, be more knowledgeable of when it comes to the fitness and the nutrition industry? सो मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलता हूँ, दिस इज हाउ आई मेक कंटेंट, कि ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है किसी भी चीज का. कोई आपको कल को आगे बोलता है ना, दिस इज द सीक्रेट फूड विच विल, दिस इज द सुपर फूड, या दिस इज सिंगल एक्सरसाइज विच विल चेंज योर लाइफ, विच विल हेल्प यू टू लूज फैट फास्टर, ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं है. तो अगर आपको कोई सीक्रेट सेल कर रहा है, तो वहां पे ही बात ये हो गई कि वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है. वो सीक्रेट बता के आपको आपका टेंशन ग्रैब कर रहा है अननेसेसरी, और आपको और कंफ्यूज कर रहा है उस चीज के लिए. सीक्रेट नहीं है. तरीका यही है, कम खाओगे तो फैट कम हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो फैट बढ़ेगा. आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो थोड़ा बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, उसके साथ उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. सीक्रेट कुछ नहीं है. मैं लोगों को बोलता हूँ डोंट गो आउट कि आप सीक्रेट ढूंढ रहे हो, ये एक ड्रिंक पी ली सुबह, लेमन वाटर चिया सीड्स मिला के पी लिया तो उससे फैट लॉस हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे विच कैन मेक यू लूज फैट फास्टर. Like if I'm working out also, Chirag, sir, do I need to take some proteins also or not required? नहीं, Protein, जैसे as in, मैंने अभी. I'm not talking about the natural protein. I'm talking about those the protein shakes that you get या in the market and all of that. So या like काफी लोग बोलते हैं कि मतलब
take a spoonful of protein after you come from a run. So is it necessary या फिर मैं avoid कर सकता हूँ उसको totally? अभी जैसे मैंने बोला, आप अपने मील में प्रोटीन का सर्विंग ऐड कर लो, Right, राइट? तो right, अभी आपसे अगर ऐड नहीं हो रहा, आप right, चिकन नहीं कुक कर पा रहे, आपको टोफू का टेस्ट पसंद नहीं है, right, सोया चंक्स आपको पसंद नहीं आ रहे, right, वहां पे वे एज अ सप्लीमेंट कैन बी अ वंडरफुल थिंग। right. Okay. फिर आप एक स्कूप उसका ऐड कर सकते हो। Hmm, बट ऐड करने से पहले बस ये ध्यान रखो कि आप अच्छी ब्रांड का लो, hmm. अच्छे किसी सेलर से खरीदो, अच्छी शॉप से खरीदो, क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। Correct, तो होगा correct, क्या, कुछ नकली पाउडर आपके पास आ गया है, कुछ भी ऐसा हो गया, तो दैट विल इम्पैक्ट योर वो किडनी, लिवर, डाइजेशन, कुछ भी खराब कर सकता है। right, right. So इसमें like generally you take it from online. I think it makes more sense for people to buy it online या फिर offline भी किसी reseller से ले सकते हैं, मतलब कैसे? ऑनलाइन खरीद रहे हो तो कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्ट खरीदो, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। डोंट Correct. गो फॉर Rather द rather थर्ड than to पार्टी। go through a vendor or somebody या else. थर्ड पार्टी सेलर से लोगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ कि कोई आपको नकली बना के Correct. दे देगा। और शॉप से ले रहे हो तो आप फिर सिटी में तो आप अपने जो दोस्त जिम वगैरह करते हैं वो दे विल गिव यू द रेफरेंस कि इस शॉप से ले लो। ऑल्सो डोंट गेट इनटू द ब्रांड लाइक दिस कि इसी ब्रांड का लेना, इस ब्रांड से अच्छी कोई Yeah. ब्रांड नहीं है, ऐसा नहीं होता। काफी Hmm. सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। Hmm. तो बेसिकली अगर कोई ट्रेनर है ऐसा जो आपको सेल कर रहा है कि आप मेरे से ही प्रोटीन लो, मेरे पास सबसे अच्छा प्रोटीन है, तो अगेन दैट्स अ वेरी शेडी थिंग, डोंट गेट इनटू दैट। Right, right, right. Great. So, coming back, Chirag, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, they come to you. So, do they have generally some misconceptions about fitness हो गया, health, nutrition, कि हम अगर ये करेंगे कि ये हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो हमें ये नहीं होगा? ऐसा कोई misconceptions होते हैं about when they come या to सो clients? अभी सबसे ज्यादा जो हेल्थ टिप्स मिलती है ना लोगों को, वो ऑनलाइन नहीं मिलती, वो व्हाट्सएप के ऊपर मिलती है। ग्रुप के अच्छा, अंदर आप WhatsApp देखोगे, यूनिवर्सिटी. या फॉरवर्ड्स आते रहेंगे कि ये वाली ड्रिंक बना लो, इससे हाँ, आपका फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। तो लोगों के दिमाग में वो भर चुका है। अभी किसी ने हम आके इंस्टा उनको इंस्टा बताते पे हैं ना। रील देख लियो. हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वी टेल देम कि नहीं, यू डोंट हैव टू ड्रिंक एनीथिंग स्पेशल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, यू जस्ट हैव टू ईट लेस, ईट मोर प्रोटीन, दैट्स अबाउट इट। तो दे गेट सरप्राइज कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, यू हम्म. शुड बी गिविंग अस सम, कोई डिटॉक्स जूस तो दो हमें, कोई इससे डिटॉक्स कैसे होगा, ये कैसे होगा। वी टेल देम देयर इज नथिंग लाइक डिटॉक्स एंड समथिंग, डोंट बाय इनटू सच थिंग्स, जस्ट ईट लेस एंड ईट मोर प्रोटीन, दैट्स अबाउट इट। हाँ, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. लो, आप या आपको या आपको बैलेंस करना है चीजों को. परफेक्ट, परफेक्ट. तो एंड देन हाउ डू यू stay up to date with your latest research recommendations in the fitness industry and your health and nutrition field? Do you read about it, and like how do you keep yourself updated कि क्या चल रहा है? Are you following certain patterns that are say probably followed in the West, या proper nutrition के जैसे like you have a lot of literature about nutrition also? Do you read about it, and then how do you keep yourself abreast with what is happening new? Yeah, so I follow many scientists on Twitter and Instagram. First of all, they keep releasing new research, whatever happening अच्छा, in the industry about क्या exercise कोई किसी science को and recommend कर सकते हो? Anybody who you could suggest that I could also probably so uh, Dr. Gill is very good. Nutrition Made Simple. It's his YouTube channel. Dr. Gill? Okay, Yeah, doctor. Nutrition Made Simple is the YouTube channel. You will find the content there. He keeps publishing, not publishing. He keeps discussing the new research happening in the industry. Right. एंड अदर गाइस, लेन नॉर्टन, बायोलेन करके उसका ट्विटर हैंडल है। Okay. Lane सो Norton. दी या सो दीज टू पीपल कीप पोस्टिंग न्यू रिसर्च वॉट एवर इज हैपनिंग, एंड I also follow some people who post some secrets again ki you should stop eating this and all those counterproductive stuff, just to know ki what people are selling nowadays, Hmm. which can impress or which can attract my client towards them. Hmm. So for example, I give you, अभी लोगों ने एक नया ट्रेंड चला रखा है कि सीड ऑयल्स नहीं खाने चाहिए। Right. सीड ऑयल्स खाने से आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है।
राइट। तो हम जब ऐसे ट्रेंड्स देखते तो वी गेट इनटू रिसर्च ऑफ इट कि या ये ट्रेंड सही में है, देन वी रिसर्च अबाउट इट, वी गो रिसर्च, डू रीड रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, देन वी राइट। कम टू नो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दीज पीपल आर जस्ट स्प्रेडिंग द फियर अमंग द ऑडियंस। राइट। राइट। सो यार दोनों साइड की चीजें आप जितना पढ़ोगे जितना जानोगे वैसे हैंडल्स फॉलो करोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में, पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट थिंग। राइट। तो मतलब क्योंकि जनरली क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम श्योर वो तो होता ही होगा कि मतलब आपके साथ भी होता होगा दैट पीपल कम टू यू विद देयर ओन रिसर्च कि भाई हमने इंटरनेट पे ये पढ़ा है, हमने या अपना खुद रिसर्च ये करा है, तो खुद हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन कोच खुद बन के आते हैं कि भाई देखो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, ये सही है। तो ऐसे भी आई एम श्योर ऐसे भी आते होंगे। हाँ हाँ ऐसे आते हैं, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमारी टीम के अंदर भी होता है, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम ये है कि एज अ इंडियन ऑडियंस हमें रिसर्च पढ़नी आती नहीं है, क्योंकि हमने, हमारे पास एक तो इंटरनेट लेट आया, और नाउ जियो के आने के बाद तो वी आर वेस्टिंग आवर इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम, हम रील्स ही देख रहे हैं बैठ के, हम एक्चुअल स्टडी तो कर ही नहीं रहे कि क्या होती है रिसर्च, रिसर्च को पढ़ते कैसे हैं, उसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी मैथोलॉजी क्या थी, उनको कैसे टेस्ट करा था, ब्लाइंडेड ट्रायल्स क्या होते हैं, ये सब करेक्ट। चीजें लोगों को नहीं पता। तो उनको क्या लगता है हमने गूगल करा, उस पर रिसर्च टाइप करा, और जो पहला लिंक आया दैट इज द फाइनल रिसर्च, और मोस्टली लोग क्या डायरेक्ट उस रिसर्च का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं विदाउट रीडिंग द रिसर्च, कि कंक्लूजन निकला भी कैसे। राइट। सो वहां पे बायस क्रिएट हो जाता है, आपने कोई रिसर्च पढ़ी और वो बायस आपको मिल गया कि इस कंक्लूजन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। राइट। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं रिसर्च में कैसे किया था। जैसे आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि डाइट कोक के अंदर एक एस्पार्टेम करके स्वीटनर होता है। राइट। राइट। ओके। तो अभी उसको आप गूगल करके सर्च करोगे ना तो लिखा हुआ आएगा एस्पार्टम कॉजेज कैंसर, राइट। ये उसका कंक्लूजन है। तो लोगों ने ये कंक्लूजन बना दिया डाइट कोक पीने से कैंसर होता है। अच्छा। बट ओके। जब हमने रिसर्च पढ़ी उसकी जाके तो हमने देखा कि वो जो एस्पार्टम है वो रेट्स को खिलाया था, वो भी डेली उनको 2000 किलो खिलाया था। ओके। 2000 किलो मतलब हम डेली का कुछ है ना, अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में बताऊं तो डेली की 700 डाइट कोक पी रहे हो, हाँ। ओके। 700। उसके राइट। बाद उनको कैंसर हुआ। राइट। तो लोगों ने इसका एक कंक्लूजन निकाल दिया कि कैंसर होता है डाइट कोक से, बट आप सही में Obviously, रिसर्च if you are पढ़ोगे तो आपको increasing लगेगा the quantity of anything, that's obviously going to be detrimental for your health. Right. 700 इज अ लॉट। Lot of हम क्या वो एक या दो पीते हैं। वो तो है। करेक्ट। करेक्ट। सो या तो दैट्स हाउ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट टू रीड, एंड लोग ऐसे उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो इसमें अपना ही मतलब आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू गो टू अ सर्टिफाइड और लाइक पीपल लाइक यू who do it for a profession and are professionally doing it and giving out health tips, fitness tips, and all of that. Acha, before we wrap up, I just want to ask you a couple of last questions, Chirag. जैसे ये सप्लीमेंट्स होते हैं, हेल्थ डाइट्स होते हैं, मतलब काफी लोग बोलते हैं कि अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि हम क्वांटिटी में ले सकते हैं या थोड़ा एक स्पून ले सकते हैं, वो है। बट अगर हमने बिल्कुल भी नहीं लेना है लाइक सप्लीमेंट्स, तो हम उनको बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ या काफी, द ओनली रीजन दैट आई आस्क्ड यू दिस इज बिकॉज when I speak to a lot of people, few friends of mine who have been taking supplements for the longest time, मतलब जिम जा रहे हैं काफी 7-8 साल से एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वो ले रहे हैं 4-5 साल से, तो ले ही रहे हैं वो सप्लीमेंट। तो मैं इनको बोलता हूँ कि तू बिना सप्लीमेंट्स के भी काम कर सकता है। तो दैट्स द ओनली रीजन दैट आई आस्क्ड यू कि will it is it going to decrease my fitness if I don't take supplements, or do I need to specifically take supplements to enhance my health and सो my सप्लीमेंट का मतलब ही है कि वो किसी चीज को सप्लीमेंट कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। right? सप्लीमेंट का मतलब दीज आर नॉट ड्रग्स, दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर जस्ट फूड सप्लीमेंट। आप Right. प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो तो आप प्रोटीन ले लो, आपका क्रिएटिन इतना नहीं जा रहा तो आप क्रिएटिन ले लो, उससे आपको 5-10% एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, दैट्स अबाउट इट। Hmm. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सप्लीमेंट लेना नेसेसरी है, सप्लीमेंट छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी वापस डल हो जाएगी या फिर आपको फिटनेस लेवल डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। तो मतलब जैसे अगर आप जैसे लाइक यू सेड दैट अगर हम
एग्स नहीं खा पा रहे हैं, या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू हैव और कंज्यूम एग्स, और ये आपका चिकन हो गया, तो उसकी जगह वी कैन टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड ऑल, या अगर राइट? आप डेली खा पा रहे हो तो क्या कुछ दिक्कत ही नहीं है, फिर तो फूड इज मोर देन इनफ। अभी जैसे आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, मेरा अगर गर्मियों में मेरे से अंडे ज्यादा नहीं खाए जाते, बहुत लोग हैं जो गर्मियों में अंडे नहीं खा पाते। राइट, सो गर्मी में वे का कंजप्शन बढ़ जाता है कि हम ठंडे पानी में मिला के सिप सिप करके हमने पी लिया दिन भर में काफी वे, तो उससे राइट, ये बहुत इजीली चले जाता है। राइट, अगर सर्दियों की बात हो तो सर्दियों में लोग ओवरऑल ज़्यादा खाने लगते हैं, तो उस टाइम सप्लीमेंट्स की रिक्वायर्ड कम हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल आप आराम से खा सकते हो। आप चावल भी खा रहे हो अच्छे से, आप उसके साथ चिकन एग भी खा पा रहे हो, खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो राइट। वहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता सप्लीमेंट्स का। तो मतलब यू कैन डू विदाउट इट ऑल्सो। या इजीली। Great, great. Acha, and before that, Chirag, any success stories of clients that I keep on following your posts and all of that on Twitter, वो मैं देखता रहता हूँ आपका. So other than that, like any major fitness goals that you think your clients have achieved in the due course of your program, and अभी कुछ है ऐसा कोई मतलब that like some success stories with clients per se? सो हमारी सक्सेस स्टोरीज है, हम मतलब अभी जैसे एब्स ला के दिखाना तो क्लाइंट का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। अभी हाँ। रिसेंटली मॉर्निंग में जो आज पीएफसी ने पोस्ट करा था, उस क्लाइंट ही वाज इनटू अल्कोहल एडिक्शन कम्प्लीटली। अभी उसने अच्छा, अल्कोहल छोड़ ही दिया जब से वो हमारे साथ एनरोल हुआ, बिकॉज वो इतना सीरियस हो गया फिटनेस को लेकर। ओके, नाउ ही गॉट एब्स एंड ऑल, मगर वो एब्स तो ठीक है, बट अल्कोहल छोड़ दिया वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। करेक्ट। मतलब जो कंटिन्यूअसली डेली ड्रिंक करता है, अगर वो बोल रहा है मैंने अल्कोहल छोड़ दिया है, तो हाँ, दैट वो इज अ गुड डेली थिंग। ड्रिंक तो ऑब्वियसली वो तो इट्स डेट्रीमेंटल। तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। ऐसी मदर्स आती है जो मतलब 45-50 की एज में उन्होंने हैवी वेट लिफ्टिंग करना चालू कर दिया, तो दैट्स अ बिग चेंज। करेक्ट, एंड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एग्जाम लाइक यूपीएससी सीए ये सब क्लियर कर लिया वाइल डूइंग द वेट लॉस, अगेन दैट्स अ बिग स्टोरी। सो ऐसे हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं। ग्रेट, एंड ग्रेट। वी ऑलवेज गेट इनटू द स्टोरी ऑफ देम, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो ये क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि वेट लॉस अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट उसका रीजन क्या है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Perfect, perfect. Acha, Chirag, before we leave, do you want to plug in something where people can get in touch with you, where they can probably reach out for your nutrition programs? Anything that you want to say before we leave? सो आई यू वोंट एवर सी मी एडवर्टाइजिंग ओपनली इन नहीं नहीं, द ऐसे ही इवन मतलब ऑन ट्विटर। मैं वैसे ही या जनरल बोल रहा हूँ, if you just want to plug in something, that's okay. So you guys just see my profile on Twitter. You can go through my profile or you can go through the I'll PFC put it in club. the We keep description sharing. below. Thank you so much. No worries, That no. should be more than enough. नहीं, perfect, perfect. Thank you so much. I don't know. I had been wanting to, have a one-on-one conversation with a nutrition specialist for the longest time, Chirag, and too kind of you to take out time from your schedule. So thank you so much. I hope we can do this sometime again. Yeah. Thank you so much. Yeah, for sure. Thanks, Yash. Thank you. Take care. Thank you so much, Chirag.